friends, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. So dear friends, today is mock 15. I hope you all are ready with today's mock test and आज से मैंने पैटर्न को चेंज किया है. What I am doing is कि आज आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिखेंगी and I am providing you only questions so that you need to attend yourself एंड आपको एक नोट में लिखना है इसका आंसर. एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल प्रोवाइड द आंसर एंड मैं टेलीग्राम चैनल पे भी इसका आंसर्स आपको दे दूंगी सो दैट कि आप जब अटेम्प्ट कर रहे हो इस क्वेश्चन को तो यू कैन मैच कि वेदर आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए. वाई आई एम डूइंग दिस इज बिकॉज यू नीड टू फील कि एग्जामिनेशंस में जब आपका प्रेशर होता है तो आप किस तरीके से सॉल्व करते हो. एंड फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई एम गिविंग यू 1 मिनट का चांस. ओके, so let's start and see how this quiz begins today. So this is the first question of computer network and इसमें मैंने इस एक क्वेश्चन से मैंने यहाँ पे 6 different क्वेश्चन किया है. तो just understand the concept and try to write down the answers in your notebook. Time starts now. For this question, I am giving you 4 to 5 minutes, correct? Because 6 questions are there. I will give you 4 to 5 minutes. सो इट्स 1 मिनट ओवर. आई होप आपने 1 मिनट में एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिया होगा. लेट अस गिव यू अनदर मिनट ऑल्सो टू सॉल्व 6 क्वेश्चंस. So it's 1.5 minutes. So it's 2 minutes over. I hope all have written the questions correct. All have written the answers. Let's move to the another question. So this is question number 2. Write the answer in your notebook. You need to find out which is the true statement. Let us give you a few seconds more. You need to select which is the correct answer, true statement. Okay. I hope everyone has written. Let's move to the next question. This is very easy question and this is December 2019 question. I have given you the hint. क्या होगा इसका आंसर? The motive for putting this question is कि you must understand for UGC NET you have to solve at least 3 to 4 previous year question. पूरा 100 का 100 का आपको solution मालूम होना चाहिए. Okay? Now question number 4.
which I have taken from UGC NET December 2005. Each and every question is very 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 important. It will give you an idea कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है and which topics are still pending कि अब आप उस पर फोकस करना ज़रूर शुरू करें. This is very easy question. I hope सबने इसका आंसर लिखा होगा. Next question. Which are the following database feature of NoSQL? Already we have covered big data on our channel जिसमें मैंने tools वगैरह सब कुछ cover up कर लिया है. Now it's the time for NoSQL. तो NoSQL is very easy. जिसमें कोई भी SQL ट्रांजेक्शन कंकरेंसी कंट्रोल नहीं होता है. आपकी क्वेरी को फास्ट करने के लिए व्हाट आर द कॉन्सेप्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर्स जो आप NoSQL में स्टडी करते हो. लाइक के वैल्यू पेयर होते हैं, ग्राफ बेस्ड होता है. तो इस तरीके से आपको NoSQL का विकीपीडिया ज़रूर पढ़ना चाहिए. सो लेट अस गिव यू सम मोर टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन. बेसिकली यू नीड टू एलिमिनेट इट. आपका इस तरीके के क्वेश्चंस हाईली यूजीसी नेट में पूछा जाता है पेपर 1 एंड पेपर 2 में. दे विल गिव यू सर्टेन ऑप्शंस एंड ऑप्शंस में से आपको एलिमिनेट करना है. करेक्ट. Let's move to the question number 6. This is very easy question. You need to count the token. This I have taken for compiler because I have taken compiler इसलिए क्योंकि बहुत ऐसे लर्नर्स है जो सारे कोर सब्जेक्ट पढ़ने में कहीं ना कहीं they forget to study compiler. That's why I have put this easy question here. You must understand what is how you are going to count token. compiler के phases क्या हैं, that is very important. And this for UGC NET के लिए आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए बिकॉज उससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. हेयर इट इज़ 2 क्वेश्चंस, 6 का ए एंड 6 का बी. दोनों का आंसर आपको नोटबुक में लिखना है. दोनों में कितने नंबर ऑफ टोकन्स हैं, 6A में कितने होंगे एंड 6B में कितने होंगे. आई होप यू ऑलरेडी हैव रिटन बिकॉज आई हैव गिवन यू एनफ टाइम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In graphics, the number of vanishing points depends on what? So you must learn what are the difference between parallel and projective प्रोजेक्शन. करेक्ट. बिकॉज प्रोजेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो आपको प्रोजेक्शंस तो ज़रूर करके जाना चाहिए एग्जामिनेशंस में. एंड दोज लर्नर्स हु आर वॉचिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई विल ऑल्सो हाईली रिकमेंड टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल बिकॉज देयर वी कैन डू डिस्कशन एंड वॉट एवर सजेशन, वॉट एवर फीडबैक यू विल प्रोवाइड, आई विल जस्ट मेक श्योर कि मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँ. I hope you all have read the question and given the answer. Correct. Question number 7. So this was all about today's quiz जिसमें 7 क्वेश्चन था and you can take the screenshot of this video and just try to evaluate yourself कि out of question number 10 आपका कितना सही हुआ. and the motive for putting these questions are what कि मैंने एक कंप्यूटर नेटवर्क में आपको एक आइडिया दिया है कि सब नेटिंग पे किस तरीके के क्वेश्चन दे कैन आस्क यू 5 क्वेश्चंस. एक ही क्वेश्चन में वो डिफरेंट 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अगेन आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के मेथड्स मालूम होना चाहिए. कंपाइलर आप कहीं ना कहीं छोड़ के जाते हो विच इज़ वेरी इजी, तो आप कंपाइलर को ज़रूर कवर अप करें. एंड व्हाट क्वेश्चन, प्रोजेक्शन, कंप्यूटर ग्राफिक्स से अगर आप सब कुछ छोड़ रहे हो तो एटलीस्ट प्रोजेक्शन तो ज़रूर करके जाए. सो दिस वाज सम मिसलेनियस यूनिट जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है पढ़ने के लिए. दैट्स वाई आई हैव पुट दैट क्वेश्चंस इनटू द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट. तो जैसा भी आपका फीडबैक है ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें. एंड लेट मी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें कि आई एम प्लानिंग टू टेक दिस टाइप ऑफ मॉक टेस्ट अगेन ऑन संडे, जिसमें आप टॉपिक बताओ उस पर हम एक मॉक टेस्ट इस तरीके से कर सकते हैं कि आई विल जस्ट प्रोवाइड यू द क्वेश्चंस एंड आई विल सेट द टाइमर और आप टाइमर के बेसिस पे यू कैन solve the question. Okay, so thanks for watching dear friends. Whatever you feel, whatever you have any doubt, just put in the comment section. Happy learning. Thank you so much.